So when we talked about Pentecost, we talked about how Sinai, when Moses got the law from heaven, that was so similar to Pentecost. और हम लोगों ने पेंटिकोस्ट दिन के बारे में बात करी थी कि वो कितनी मिलती जुलती है मूसा जब सीने पर्वत से आ रहा था नीचे। You know, when Moses got the law from Sinai, that is what the Jews celebrated as the festival of Pentecost for thousands of years. और जो यहूदी लोग थे वो हजारों साल से इस पेंटिकोस्ट के दिन को मना रहे थे, जो कि मूसा को जब व्यवस्था मिली थी उसके रूप में। And then the Holy Spirit comes and the church is born. उसके बाद पवित्र आत्मा आती है और कलीसिया का जन्म होता है। Okay. Anyone remembers what did Moses bring from Sinai? किसी को भी याद है कि मूसा सीने पर्वत से क्या लेके आया था? What did he bring? What did he bring? 10 आज्ञा। Yes. What was it? Paracetamol. the tablets of stone. वो पत्थर की तख्तियां थी जिसपे आज्ञा लिखी हुई थी, वो लेके वो आए। Growing up, I always wondered why were they called tablets. और जब बड़े हो रहे थे ब्रदर तो ये हमेशा सोचते थे कि भाई ये टैबलेट क्या है। You know, we always heard it, the tablets of stone. मतलब पत्थर की टैबलेट। And when I was little, I wondered how did he write 10 commandments on tablets? ये हमेशा सोचते थे कि वो 10 आज्ञा कैसे उसने टैबलेट पे लिख दी। But the thing is that word tablet comes from the word table, meaning tables of stone, and a little table is a tablet. तो लेकिन वास्तव में ये जो टैबलेट शब्द है वो एक पत्थर की टेबल होती थी, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। So a small table is a तो tablet. छोटी सी जो मेज है या छोटी सी जो टैबलेट है उसको टेबल है उसको टैबलेट। So when Moses went on to Sinai, तो मूसा जो है वो सीने पर्वत पर गया, and he brought these pieces of stone written by the finger of God. तो वो उस पत्थर के पीस को लेके आता है जो कि परमेश्वर की उंगली से लिखे I गए। have an imaginary picture. Let's put that up. Standard people like pictures. I like pictures. I like drawings. I like pictures. I think we have जो that. पिक्चर है वो हम लगा सकते हैं। Okay, there we go. So there you see Moses. We don't know what he looked like. He's carrying those 2 stones and he's coming down. आप देख सकते हैं वहाँ मूसा है, 2 तख्तियों के साथ है। He comes down and they're having a party. वो नीचे आता है पर्वत से और देखता है वहाँ लोगों की पार्टी चल रही है। Enjoying themselves at this serious sacred moment. वो लोग वहाँ पे मजे ले रहे हैं पार्टी करके, जबकि बहुत ही वो पवित्र समय था। Okay, and the reason why Moses got angry was because the people were distracted from the focus, which was God. That was the reason. तो मूसा वहाँ पे क्यों गुस्सा हुआ, उसका कारण यही था कि जहाँ पे लोगों को परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना था, उन्होंने वो ध्यान वहाँ से हटा दिया। You know, he had called them, come and listen to God, and then they got tired waiting. वो लोगों को बोल रहा था आओ और परमेश्वर की सुनो, और वो वहाँ पे थक गए इंतजार That in करते। itself is a message. वही एक क्या बन गया, एक प्रचार भी बन गया। Sometimes we're waiting and waiting for God to speak, and we get fed up, and we're like, no, let it go. You know, I'll do my own thing. हम परमेश्वर का दुआ करके या प्रार्थना करके इंतजार करते रहते हैं और हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं और फिर सोचते हैं छोड़ो। You know, sometimes we get tired of waiting. कभी क्या होता है हम लोग इंतजार करते करते थक जाते हैं, Waiting for an answer from God. उस उत्तर का कि जो परमेश्वर से मिलना है उसका इंतजार करते करते, Then things unravel. और उसके बाद जो चीजें हैं खुलती हैं। So you know what Moses did? Was he happy when he came down? What do you think? आप जानते हैं You know the मूसा, story. आप कहानी अच्छे से जानते हैं, क्या मूसा खुश था जब वो पर्वत पे से आए? He smashed the tablets, made them drink that water. They died. He was like totally angry. You know that feeling. आप वो जो फीलिंग है वो जानते हैं, जब गुस्सा आता है तो मूसा को बहुत गुस्सा आया, उसने वो तख्ती तोड़ दी और वो पानी मिला के उनको पिला दिया और वो लोग मारे गए। Explosive anger. वो बहुत ही उसका एक भयानक गुस्सा था उसका। I'll ask you the question: how many of us do not have explosive anger? और एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका गुस्सा ऐसा नहीं कि फूट के फोड़ के निकलता है ना, वो वाला गुस्सा नहीं है, ऐसा कौन है? I don't have. नहीं। I don't have. हाँ, विस्फोटक, वो वाला गुस्सा किसका है? Who does not have that? या किसका गुस्सा ऐसा भयानक नहीं है? It's not possible. I don't. पता नहीं है, सिचुएशन पे जाता है। दोनों साइड से हो सकता है।
Moses was human. मूसा इंसान ही था। You know, but then we come to Matthew's gospel. लेकिन उसके बाद हम लोग मत्ती सुसमाचार पे आते हैं। I have one more picture. और एक और पिक्चर है वहां पे। Let's go to that. ब्यूटीफुल। And you see someone on a mountain. आप देखते हैं वहां पे कोई बैठा है पहाड़ी पर। Okay, this is the actual terrain, no? Where the Beatitudes were done. It's taken it from Galilee. ये सच में जहाँ पे वो उपदेश दिया गया था, पहाड़ी उपदेश जो थे, वो वहां की पिक्चर है। And you see light. और आप देखते हैं वहां रोशनी है। You see people listening. और आप देखते हैं लोग वहां बैठे हैं और सुन रहे हैं। You see a man teaching with authority. और आप देखते हैं वहां पे एक व्यक्ति बैठा है जो अधिकार से सिखा रहा है। Who is God himself. वो खुदा। And who says, I have not come to break the law, but to fulfill it, to make it true. वो क्या कहता है कि वे मैं जो कानून है या जो व्यवस्था है उसको तोड़ने नहीं आया, परंतु व्यवस्था को पूरा करने आया। Sinai is the rules, Sinai is the law, Sinai is the religion. जो सीने पर्वत पे हुआ वो व्यवस्था थी या फिर वो कानून थे। Thou shalt not. King James Version. वो जो किंग जेम्स की जो बाइबल है वहां पे इस प्रकार लिखा है, जैसे इंग्लिश में बोला thou art, Such authority. उसमें बहुत ही एक सामर्थ के साथ या अधिकार के You साथ will not do this. कि आपको यह नहीं करना होगा, Do this. ये नहीं करना। Set the laws for religion. वो व्यवस्था के लिए या फिर उस धर्म के लिए वो वाली लॉ बनी Said थी। God is far. वो क्या दिखाता है कि परमेश्वर दूर है। You want to come to God? अगर तुम खुदा के पास या परमेश्वर के पास आना चाहते हो, Do something. तुम्हें कुछ करना होगा। Go bring a sacrifice. जाके बलिदान लेकर आओ। Cut an innocent animal. वो निर्दोष जो जानवर है उसको काटो, Burn its flesh. उसके मांस को जलाओ। Take a pilgrimage 3 times a year to Jerusalem. और उसके बाद 3 साल यरूशलेम पे 3 बार साल में यरूशलेम जाओ। Go walking. वॉक करके जाओ, पैदल जाओ। Everybody, imagine you have to walk 3 times a year, hundreds of kilometers, hundreds of miles, 3 times a year, with no internet, no Wi-Fi. आप सोच सकते हैं कि साल में 3 बार आपको कितना ज्यादा चल के यरूशलेम जाना है। That was Sinai. वो सीने था, सीने पर्वत का। And then you see this man at the Sea of Galilee. लेकिन फिर आप वो गलील की झील के पास इस व्यक्ति को देखते People हैं। sitting, वहां पे लोग बैठे हैं, not jumping around. कोई कूद नहीं रहा, They're listening. वो सुन रहे हैं। And those are the first things which Jesus says in the Gospel of Matthew. और वो पहली बात है जो मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह ने कही। Chapter 5. 5वां अध्याय, You are blessed. वो शुरू करता है कि तुम आशीषित हो। You know, this is not a sermon of where you say, no, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. No, Jesus is saying you are blessed when you do certain things. वो ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि तुम आशीषित हो, तुम आशीषित हो, नहीं। वो यहाँ पे कुछ बातें हैं वो बता रहा है, जब हम करते हैं उससे हम आशीषित हैं। Are we blessed? क्या हम आशीषित हैं? Sometimes you think, no, my life isn't going well, that isn't going well. But we are blessed. Think of the blessings. क्या हम आशीषित हैं? हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन हमें सोचना है कि हम आशीषित हैं, उस पे ध्यान लगाना है। Growing up, we'd sing one old hymn, Count Your Blessings, name them one by one. और जब बड़े हो रहे थे ब्रदर, तो इंग्लिश एक बेदारी का गाना था कि भाई अपनी आशीषों को गिनो। Count your blessings, name them one by one. उसको Blessings, Yeah. see what God has done. कि उस आशीष को गिनना है एक के बाद एक जो परमेश्वर ने हमें दी है। And when we sang that song, I thank God. और उसके बाद जब ये गाना गाया कि आई थैंक, या मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता The हूँ। world talks about a gratitude journal. Did you know that people say, no, you're right, gratitude journal. I'm so thankful, I'm so thankful. और आप जानते हैं आजकल दुनिया में सभी लोग कह रहे हैं ऐसा जर्नल लिखो जिसमें आप बोलो भाई मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूँ, इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। I'm not thankful for what? मैं धन्यवादित नहीं हूँ किसका? I'm thankful for इसके लिए because He has given me. That's why I'm thankful. That is the difference between us and the world. तो दुनिया के और हमारे बीच में क्या अलग दिखता है वो ये है कि भाई मैं किस चीज के लिए या किसके लिए मैं धन्यवादित हूँ। Okay, let's go to Matthew chapter 5. हम देखेंगे मत्ती 5वां अध्याय। Jesus sat on this mountain यहाँ पे यीशु मसीह पहाड़ पे बैठे हैं and the contrast between Sinai and this is Jesus is sitting with the people.
जो सीने पर्वत और यहाँ पहाड़ी पे जो है, इसका जो अलग दिखता है वो ये है कि यीशु मसीह लोगों के साथ बैठे हैं। Okay, in Sinai, God stayed far. God said, "Don't come near me." और सीने पर्वत पे क्या था? परमेश्वर बहुत दूर था और उसने कहा था मेरे नजदीक मत आना। Friends, we see Jesus today. लेकिन आज हम यीशु मसीह को देखते हैं, The God who is with us, the God who is near us, the God who is in us, the God who is holding us. वो पिता, वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमारे साथ है और हमें पकड़े रहता है। Amen. Let's go to Matthew chapter 5. मत्ती 5वां अध्याय। And over these next few weeks, we'll be dwelling on this for quite a while. We'll be talking about these commandments. And it says, when Jesus saw the crowds in verse 1, he went up on a mountainside and he sat down, and his disciples came to him and he began to teach them. 5वें अध्याय में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। He was not a celebrity. वो कोई बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था। Don't come near me, paparazzi, don't come near. ऐसा नहीं था। यीशु मसीह बड़े उस समय प्रसिद्ध नहीं थे कि लोग उनके पास आते तो कहते नहीं 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 मेरे पास नहीं आना। This is the creator of the universe. When we come to him, he sits down. He says, now I'll teach you. मतलब ये दुनिया का सृष्टि करता है, वो कह रहा है कि जब हम उसके पास जाते हैं वो हमारे पास आता He है। says, come to me and learn from me. That's what he says. I'll teach you. I'll teach you. वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे सीखो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। And he goes through the Beatitudes. Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed are the humble. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. All these things he says. और यहाँ पे सारे जो पहाड़ी उपदेश हैं वहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। He doesn't say blessed are the wealthy. वो यहाँ पे ये नहीं कहता कि धन्य है जो अमीर है। In our terms, we think that is blessing. और हमारे समय में हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन है तो ही हम आशीषित हैं। Poor in spirit. वो तो कहता है कि हम जब मन में दीन हैं तो हम धन्य हैं। Because the kingdom of heaven is ours. क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है या हमारा है। Blessed are those who mourn. धन्य है वे जो शोक करते हैं। When our hearts are broken, जब हमारे दिल टूटे हुए होते हैं, we might think, no, my heart is broken. That's not a good thing. हम सोच सकते हैं कि भी मेरा दिल टूटा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। No, you're blessed because I'm there to comfort. लेकिन वो कहता है तुम्हारे दिल टूटे हुए हैं, मैं हूँ तुम्हें आशीष करने के लिए, ब्लेस हो तुम। Blessed are the meek, the humble. और फिर वो कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं। What will they do? They will inherit the earth, it says, verse 5. 5वीं आयत में, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Verse 5 says, blessed are the humble, they will inherit the earth. वो कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Does it say they will rule the earth? क्या वो ये कहता है कि तुम दुनिया में या जब पृथ्वी उस पे शासन करोगे? It says inherit. वो कहता है उसके अधिकारी हो। Inherit means you will own it. अधिकारी मतलब वो तुम्हारी अपनी हो जाएगी। How should we be? तो हमें कैसा होना है? Humble. उसके लिए हमें नम्र होना है। Easy? No. क्या ये आसान बात है? नहीं। But if we want to inherit the earth, he's not just saying kingdom of heaven, he's saying the earth. We want to inherit, belongs to us. That's the way to go. तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस धरती के अधिकारी हो जाएं, तो यही एक तरीका है कि हम नम्र हों। In leadership, I've seen the staff and the leaders and the managers who go far are the ones who are humble. It's very easy. It's very easy to see. अगर आप देखेंगे लीडरशिप में या फिर क्या बोलेंगे आपने, सॉरी, स्टाफ के बीच में भी जो लोग नम्र होते हैं ना, वही आप दिखेंगे आपको बहुत आगे पहुंचते हैं। Definitely. Everywhere I see it. The top leaders in any organization are the people who are the ones who are humble. मतलब कोई भी जो टॉप है उसको हम देख सकते हैं उसके जीवन को, क्यों नम्र होता है तो ही वो आगे पहुंचता है। Many times when people go to the top, they forget about that humility. और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई ऊंचे पे चढ़ जाता है तो वो भूल जाता है नम्रता को। And then verse 6 he said, और उसके बाद 6ठी आयत में, blessed are those who, read that verse, who hunger and thirst for righteousness. धन्य Is good. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। There's a special blessing when we hunger and thirst for
what is right. मतलब यहाँ पे एक स्पेशल आशीष है जब हम लोग धर्म के भूखे और प्यासे होते हैं। It says because you will be filled. क्यों? क्योंकि वो कहता है तुम तृप्त किए जाओगे। Friends, think about it. This is simple, basic teaching of Christ. मतलब यहाँ पे बहुत ही साधारण और जो बेसिक है, खुदा ने जो शिक्षा दी है यीशु मसीह ने, वो यहाँ पे लिखी है। This is the foundation line. ये एक न्यू है। This is the floor plan of everything which we call Christian. मतलब जो भी चीजों को हम मसीहत कहते हैं उसकी ये एक न्यू है। We go into different higher levels and many times we forget the foundation and this is it. मतलब हाँ, अलग अलग शिक्षाओं में चल जाते हैं, बहुत ही ऊंचा ऊंचा सुनते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रभु की न्यू क्या थी। Do I hunger and thirst for what is right? Jesus says, I'll be filled. क्या मैं जो अच्छी बातें, जो सही बातें, जो धर्म की बातें हैं, क्या मैं उसके लिए भूखा प्यासा हूँ? तो यीशु मसीह कहते हैं वो हमें तृप्त करेंगे। Verse 7. उसके बाद 7वीं आयत में, We're blessed if we are merciful. Merciful, he says, verse 7. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. और फिर वो कहता है धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। How many of us have been shown mercy in our lives? हम में से कितनों के ऊपर दया दिखाई गई है? And we know God has given us mercy. और हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें दया दी है। Lord, Jesus said, be perfect like your heavenly Father is perfect. The question is, am I merciful? यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो प्रश्न यही है, क्या मैं दया दिखाता हूँ लोगों पे? Am I merciful? क्या मैं दयावंत हूँ? When I speak, जब मैं बोलता हूँ, when I deal with my family, जब मैं अपने परिवार से मिलता हूँ या परिवार से हम रोज के जीवन में डील करते हैं, क्या मैं दयावंत हूँ? dealing with the children, it is difficult to be merciful sometimes. और बच्चों के साथ जब डील करना होता है तो कभी कभी क्या होता है, मुश्किल होता है उनके ऊपर दया दिखाएं। But I'm just saying in general, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं, are we known as a person who is hard-hearted and people cannot come to us? It's like, no, what I say, that's all and nothing. It's my way or the highway. Or people can know that, no, I can ask. मतलब क्या हम ऐसों को भी जानते हैं जो बड़े ही कठोर दिल के, उनके पास जाना ही मुश्किल हो जाता है, बात करना ही मुश्किल हो जाता है। And then he says, blessed are the, next one, pure in heart. और अगली आयत, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। They will see God. वो परमेश्वर को देखेंगे। Have we seen God? क्या हमने परमेश्वर को देखा है? We have to be pure in heart. उसके लिए हमारे दिल शुद्ध होने हैं। I'm preaching to myself. I'm telling myself also. वरन ये सारी बातें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। I'm just a person here standing with the mic. That's the only difference from you and me right now in this moment. बस खाली जो डिफरेंस है वो यही है कि ये यहाँ पे माइक लेके खड़े हैं और आप बिना माइक के सुन रहे हैं। But this word applies to everybody. लेकिन ये जो वचन है हम सबके ऊपर लागू होता है। You know, I want to see God. परमेश्वर को मैं देखना चाहता I हूँ। want to see Him in people. मैं चाहता हूँ परमेश्वर को लोगों के अंदर देखना। It's interesting. Mother Teresa, she had a certain saying, जो मदर टेरेसा थी वो कुछ बातें कहती थी, and she picked up the worst of the worst. उन्होंने जो सबसे बेकार, सबसे तुच्छ या बुरा था उसको ही उन्होंने उठाया। Our work in Calcutta, I like to go there and just look at her place every time we go. और जो काम हम करते हैं कलकत्ता में, और ये जब भी जाते हैं कलकत्ता, इनको अच्छा लगता है कि वो जगह जहाँ मदर टेरेसा थी वो देखें। The homeless people here look nice compared to the people whom she touched and picked up. यहाँ पे जो होमलेस पीपल हैं, लोग हैं, हम उन्हें देखते हैं, उनसे भी बदतर हालत थी जिनको मदर टेरेसा ने उठाया था या देखभाल की The थी। dying on the street, वो लोग सड़क पे मर रहे थे। the lepers, people with open wounds, everything, she'd go and wash them, clean them, look after them. वो कोढ़ी थे, उनके घाव पूरे खुले हुए थे और वो उनको जाती थी, साफ करती थी, धोती थी। And you know why she did that? और आप जानते हैं वो क्यों करती थी? You know what she said? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? She says, I see Jesus in those people. If I'm washing their feet, I feel I'm washing Jesus' feet. I was like, oh wow, that's a standard. ये सारी बातें मदर टेरेसा ने क्यों करी? क्योंकि वो उन लोगों में यीशु मसीह को देखती थी, तो सोचती थी जब मैं इन लोगों के घाव धो रही हूँ या पैर धो रही हूँ तो मैं यीशु मसीह के पैर धो रही You हूँ। know, I don't want to be so theologically high that I don't see Jesus in the homeless man who is lying on the steps down here.
मतलब अपने आप को शिक्षा में इतना ऊंचा ना कर दें कि हम उस व्यक्ति को जो होमलेस है, जो पड़ा हुआ है, उसको ही हम देख ना पाए। You know, can I see Christ in those worst of the worst? क्या मैं मसीह को देख सकता हूँ उस बदतर से बदतर हालत के लोगों में? Pure hearts, friends, we can see God like that. अगर हमारे मन शुद्ध हैं तो हम वहीं के वहीं प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। Verse 9. और उसके बाद 9वीं आयत, Blessed are the pacemakers. Pacemakers. लिखा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, So they'll be called children of God. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। You sing that song, I am a child of God. I used to sing that song. Then after that go and fight. Are we peacemakers? मतलब हम लोग गाना गाते हैं कि भी मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ या मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, लेकिन उसके बाद जाके फिर हम लड़ाइयों में जीवन बिता देते हैं या चिढ़ में। क्या मैं वाकई में परमेश्वर का पुत्र हूँ? The children of God are peacemakers. That's what he's saying. वो कह रहा है कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं वही हमारे मेल कराने वाले हैं। And then verse 10. उसके बाद 10वीं आयत, This is what Jesus has given us. And he says, blessed are those who are persecuted, laughed at, mocked at, because you are righteous and you're choosing to do the right thing. धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। The मतलब kingdom of heaven is theirs. If you choose to do the right, you get laughed at, you're doing the right thing. तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो धर्म के काम करते हैं, या मतलब जो सही बात को चुनते हैं करने के लिए, चाहे आपके ऊपर लोग हंसी उड़ाएं तो ही आप क्या हो, स्वर्ग का राज्य आपका है, हमारा है। And verse 11. उसके बाद 11वीं आयत में, Blessed are you when people, what do they do to us? Insult, persecute, and falsely say all kinds of evil against you because of Jesus. And then he says, be happy, as great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. 11वीं आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। We read this so fast. हम लोग इस वचन को बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं। You go deeper into this. अगर हम इसमें गहराई में जाते हैं, It might be easier walking 3 times to Jerusalem. तब ये आज्ञा आसान हो जाएगी उससे कि आपको 3 बार यरूशलेम जाना पड़े, इतना लंबा चल। Might be easier to do a sacrifice than these things, because these have to do with me personally, my heart, who am I as a person. और फिर बलिदान चढ़ाने से आसान हो जाएगी ये आज्ञा, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत दिल से, हृदय से बात करती है। I can't fake this. इसको हम झूठ या दिखावे के लिए नहीं कर I सकते। can't dress up my religion to look nice and clean and good and holy. मतलब अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए, कोई पवित्र बनने के लिए ऐसा कुछ भी ड्रेसअप या हम नहीं कर सकते हैं। The promises he's given, I'll just go through these. आप देखें यहाँ पे कितने अच्छे वादे प्रभु ने करे हैं। This is the kingdom of heaven is ours. वो कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, Comfort, we will be comforted. फिर वो हमें शांति भी मिलेगी, We'll inherit the earth. वो हम पृथ्वी के अधिकारी भी होंगे We'll be filled. और हम तृप्त किए We'll जाएंगे, be shown mercy. हमारे पर दया की जाएगी, We'll see God. हम परमेश्वर को देखेंगे, We'll be called the children of God. हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, And the kingdom of heaven is ours, and we have rewards in heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारा होगा और जो स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा हमें। Okay, if you write those down, it's like, yay, we won. We got everything good. We got it good. अगर आप इन सारी बातों को लिख लें तब आपको पता चलेगा वाओ कि ये सारी बातें मुझे मिलेंगी, But there's a way to get there. लेकिन उसका एक रास्ता है वो पाने के लिए। Friends, he challenged humanity when he gave us these rules. मतलब उन्होंने जो इंसान है उसको चैलेंज करा प्रभु ने जब उसने ये सारी बातें बताई या दी। He said, humans, can you do it? उन्होंने कहा इंसान या मनुष्य क्या तू ये कर सकता है? You want it all good, but can you do it? तू हर चीजें बढ़िया चाहता है, अच्छी चाहता है, क्या तू ये सब कर सकता है? Friends, this ties up to Pentecost because the Holy Spirit is here to help us. और यही वचन जो है पेंटिकॉस्ट दिन से जुड़ जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा है यहाँ पे
जो ये सारी बातें करने में हमारी सहायता करेगा। By myself, I cannot be poor in spirit. अपने मन से, अपनी शक्ति से मैं अपने मन में दीन नहीं बन सकता। It's super difficult to be humble. मतलब बहुत ही मुश्किल है नम्र बने रहना। I like to think I'm humble, सोचने में अच्छा लगता है कि भाई मैं नम्र हूँ, but inside I feel, oh, why did they say that to me? लेकिन अंदर मैं महसूस करता हूँ भाई उसने मेरे को ये क्यों कहा, How dare they? उनकी हिम्मत कैसे हो गई। What right do they have? Am I hungry for righteousness? Seriously? क्या मैं परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखा हूँ? Am I merciful? क्या मैं दया दिखाता हूँ? Am I pure in heart? क्या मैं मन में शुद्ध हूँ? Am I a peacemaker? क्या मैं मेल कराने वाला हूँ? Forget about a gossip and person who fights, but do I bring people who are fighting, do I bring them together? वो जो मतलब फालतू की बातें करना है या गॉसिप करना है वो तो दूर की बात है, क्या मैं ऐसे लोगों को जो झगड़े में है उनका क्या मैं मेल कराता हूँ? In single one, I mean, I have to tell you a little incident. Yesterday we went to Birmingham and there were two people fighting on the street. हाँ, कल हम लोग बर्मिंघम में थे तो दो जन थे वहां पे लड़ाई कर रहे थे। And we were just watching and there were people laughing and I was like, come, let's go. तो हम लोग देख रहे थे लड़ाई को, लोग थे वहां पे, आधे लोग खड़े थे, हंस रहे थे। And then I remember my dad and I told my kids this. My dad, if he sees people fighting, he'll go there and he'll try and break up the fight and stop them fighting. पापा बहुत करते हैं yes। मतलब जब भी कोई लड़ाई हो रही होगी दो जन की इनके पिताजी अवश्य जाएंगे और उन लोग की लड़ाई हटवाएंगे, छुटवाएंगे। And we would be so embarrassed as kids. He'd stop the car on the road if there was a fight. And I'd be like, Dad, don't come and sit in. You'll get beaten up. Don't go. या मेरे सामने भी ऐसे हुआ था। पापा का ट्रिनिटी वाज वेरी स्मॉल, जस्ट 3 महीने की थी और हमें रायकोटा से बैंगलोर जाना था, लाइक ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता। किसी ने बुलाया था अपने चर्च में, तो पापा मम्मी अलग गाड़ी में थे, हम अलग गाड़ी में थे। ट्रिनिटी मेरी गोदी में थी 3 महीने की, और रात का टाइम वो नहीं होते वो टोल गेट वो खुलते हैं बंद होते हैं, पैसे दे के निकलो। तो वहां से हम लोग गाड़ी लेके निकले आगे, तो वो खुल ही नहीं रहा था टोल गेट। तो टोल गेट पे जो थे 12-1 बज रहे रात के, क्रोध में बैठे हैं, लड़ाई हो रही। मैंने कहा अरे बाप रे, क्योंकि नई मम्मी बनते हैं ना तो टेंशन रहती है, बच्चों कुछ ना हो जाए, बच्चों कुछ ना हो जाए, कैसी लड़ाइयां हो रही है, बाप रे, वो सारी लड़ाइयां हो रही है। पापा जी उतरे, पीछे वाली कार से उतरे, मैंने कहा हे प्रभु हमें निकाल यहाँ से, क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब भिड़ गए भाई, लड़ाइयां हो गई तो क्या हो जाए। तो इनके पिताजी हमेशा रेडी रहते हैं लड़ाई हटवाने के लिए। He'd be there to do that. मतलब हमेशा तैयार रहते हैं। But you know, he never knew his father. और आप जानते हैं कि वो अपने पापा को कभी नहीं जान पाए। His mom raised him as a single mom. उनकी मम्मी ने उन्हें बड़ा करा एक सिंगल मम के रूप में। You can say definitely as a child of God. He is a child of God. मतलब कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के बच्चे हैं, उन्होंने मेल कराना चाहा। Bring a lion on the stage, but still he'd make peace. मतलब स्टेज पे शेर की तरह रहते हो, लेकिन फिर भी नीचे उतर के लोगों का मेल करवा। That's one example. एक उदाहरण। I wish I was like that. और ऐसा सोचते हैं कि ऐसे Have the courage to make peace. मतलब हमारे पास वो हिम्मत हो कि हम शांति बनाए रखें। Easy to do the opposite. उसका उल्टा करना वो बड़ा ही आसान हो जाता है। Easy. बहुत ही आसान होता है। One whispered word here, one whispered word there. मतलब धीमे से एक शब्द बातें यहाँ कर दी, वहां कर दी। But to bring two people together and sit them down and say, come on, talk it over. I'll mediate. That is the heart of God. That's how Jesus is. मतलब लोगों को एक साथ मिलाना वो परमेश्वर का दिल है। And those who are persecuted because of righteousness. और फिर वो जिनको सताव होता है क्योंकि वो धर्म की कारण सताए जाते हैं। When last did someone laugh at you because they said and called you, oh, you're being too holy? आपको कब लोग आपके ऊपर हंसे जब आपको बोला गया कि आप तो बड़े पवित्र हो, इस चक्कर में आपके ऊपर लोग हंसे? You can't say this around this person because no, they're too spiritual. हम ये बातें कर नहीं सकते हैं उन लोगों के सामने क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पवित्र हैं। If we are persecuted because of we want to do what is right, the kingdom of heaven is ours. और अगर हम जो सही बातें वो करना चाहते हैं या धर्म की बात और उसके कारण लोग हम पे हंसते हैं तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग का राज्य मिलेगा। And last thing, और आखिर बात, we are blessed when people insult, persecute you and falsely lie against us, not because of us, but because of Jesus. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के कारण। Okay, friends, this will happen. ये होगा। This is a guarantee. और ये मतलब गारंटी कि ऐसी बातें होंगी।
If we have to be with him, people will laugh at us. अगर हम People will insult, people will persecute. But he says, be happy, it's okay. अगर हम यीशु मसीह के साथ होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लोग हम पे हंसेंगे, बुरी बातें बोलेंगे, झूठी बातें बोलेंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि हम आनंदित रहें इस बात में। Because great is our reward where? In heaven. क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। In closing, आखिर में do we believe this is true? क्या हम इन बातों पे विश्वास करते हैं कि ये सच है, सत्य हैं ये बातें, Or is this all lies? और या This is तो all fake things. और या तो ये सब दिखावा है और झूठ है, या देखा है ऐसा हमने कहीं होते हुए। Either it's true or it's fake. या तो ये सच है या झूठ है। That's the point. Be happy when they talk bad about you because of Jesus. अगर यीशु मसीह के कारण आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो उसमें आनंदित रहें, खुश रहें। Because our reward is where? In heaven. क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रतिफल है वो स्वर्ग में है। Does not depend on our property prices or the exchange rate or the price of gold, हमारे stock market. हमारी किसी भी प्रकार की धन संपत्ति पे वो निर्भर नहीं होता है। Either it's lies or true. या तो वो सच है या झूठ है। It's simple. ये साधारण बात है, What is सिंपल बात है। recorded here, there's no like gray area. Oh, Jesus was a good guy. He talked all nice things. He was very merciful, but he said things which were pretty strange and we can't follow them. मतलब ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह बहुत बढ़िया इंसान थे, उन्होंने ये अच्छी बातें कही हैं। He healed people. He was very gentle. He was very kind. But all these things, let's put it to the side. Let's just focus on all the good things which Jesus said. यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया। चलो हम इन्हीं बातों पे ध्यान देंगे, बाकी ये जो बातें उन पे ध्यान ना दें। He challenged humanity उसने तो इंसान को एक चुनौती दी है to be like God, कि हम परमेश्वर के जैसे बने। not to be Christians. मसीह मतलब मसीह या ईसाई या क्रिश्चियन नहीं। Jesus was not a Christian. यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं थे, He's God. वो तो परमेश्वर है, वो खुदा है। And he came here to make us like God. और वो इसलिए आए कि हम भी परमेश्वर जैसे हो जाएं। People called his followers Christians. मतलब लोगों ने उनके जो फॉलो करने वाले थे यीशु मसीह के, उनको लोगों ने क्रिश्चियन But बुलाया। he gives us this pattern for our lifestyle to be like God, just God's nature. लेकिन उसने ये सारी बातें हमारे जीवनों में दी हैं कि हम ऐसे बने माने ताकि हम परमेश्वर जैसे बन जाएं। So let's bow our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे दुआ में। And this is the challenge, friends. और ये एक चुनौती है हम लोगों के लिए। Do we want to be like God? क्या हम परमेश्वर जैसा होना चाहते Be like Jesus. हैं, यीशु मसीह जैसा Follow होना चाहते Jesus. हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते Follow in his footsteps. हैं, उसके कदमों पे हम चलना चाहते These challenges which he has thrown out to humanity. हैं। ये जो चुनौती उन्होंने जो इंसानों को दी है, Pure in heart, humble, peacemaker, hungry for righteousness. धर्म के भूखे प्यासे होना और अपने को नम्र रखना और मन में दीन होना। Lord, help us. प्रभु हमारी सहायता कर, Help me, Lord. हमारी सहायता कर। This quiet moment, let's pray, Lord, help me. आइए इस शांत समय में हम प्रभु से बोलेंगे, We प्रभु tap हमारी into the Spirit who is inside us and say, help us. वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उससे बोलेंगे कि हमारी सहायता कर। The Bible says the Spirit intercedes for us. बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा जो है हमारा बिचुई है, He speaks for us. वो हमारे लिए बात करता है। Holy Spirit, speak for us and help us. पवित्र आत्मा हमारे लिए बोल और हमारी सहायता कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, for this sacred time. धन्यवाद प्रभु जी इस पवित्र समय के लिए। Thank you that we can remember you. धन्यवाद प्रभु कि हम तुझे याद कर सकते In Jesus' name. हैं, यीशु के नाम। Amen. Amen. God bless you all. Praise the Lord. Have a wonderful week.